Assalamu alaikum guys. I hope you are all enjoying good time at home and doing your best in studies. This is Danish Raza, online teacher for English. Grade 10. It's our 8th lecture. In this lecture, we are going to solve exercise of unit number 3. The title of the unit, the title of the poem is Try Again. Keep in mind, in our 7th lecture, we have done its introduction, main idea, Urdu translation with explanation, summary, and its question answers. Let's solve the exercise of the poem Try Again in this lecture. Well guys, first of all, find synonyms of the following words. It's our first question. Number 1, words meaning into English are synonyms. First of all, courage. Courage mean jurat, bravery. Persevere mean sabit kadam rehna, persist. Number 3 is conquer. Conquer mean fatah karna, win. Disgrace, toheen, insult. Hard, difficult. Reward, prize. Next is it's a grammar portion. What is simile? Define simile. How can you understand simile? Simile को हम तशबीह कहते हैं, a figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as. इल्म बयान की एक सनफ़ जिसमें वाज़िया तौर पर मुख्तलिफ दो अशिया का अमूमन जैसा कि या की तरह के अल्फाज से मुआयना किया जाता है. एग्जाम्पल्स आर ही इज़ एज़ फास्ट एज़ अ हॉर्स, इट्स एज़ कोल्ड एज़ आइस. उर्दू में हम इनके एग्जाम्पल्स किस तरह देते हैं? वो घोड़े की तरह तेज़ रफ्तार है, ये बर्फ़ की तरह ठंडा है. यानी जो तशबीहात होती हैं ये इल्म बयान की एक सनफ़ होती हैं जिसमें वाज़िया तौर पर मुख्तलिफ दो अशिया का अमूमन जैसा कि या तरह के अल्फाज से मुआवजना किया जाता है. Well guys, it's all about simile in this question. We have words. We have to make sentences of these simile words. First is as slow as turtle, as quiet as a dove, as black as coal, as tall as a giant, as sure as a lemon, as sweet as honey. We are making into sentences. We are changing into sentences. He is as slow as turtle. She is as quiet as dove. She is as black as crow. He is as tall as giant. She is as bitter as a lemon. Sma is as sweet as हनी. यानी वो कछुए की तरह सुस्त रफ्तार है, वो फाख्ता की तरह खामोश है, वो कव्वे की तरह स्याह है, वो एक देव की तरह लंबा है, वो लीमू की तरह तिरश मजाज है, अस्मा शहद की तरह मीठी है. वेल गाइस, क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस. प्रोनाउंस का करेक्ट यूज़ करके हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स को यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्रोनाउन. The word that is used instead of a noun is called pronoun. It replaces noun. You can say that it replaces noun. ये noun की जगह लेता है. He, she, it, I, we, you, they are pronouns. We have a question. Firstly, there is no need to shout dash can hear you. I can hear you. Number 2, you and I work well together. Dash are a good team. We are a good team. We have got a bit of a problem. Could dash help dash please. Could you help us? Could you help us? Number 4 is this is a good photo. Is it dash? Answer is it. Is Samina in dash? Answer is it. Number 5, who did this moving? I did it. I did it. Number 6, is this Ahmed's bag? Answer is no. He did not bring one. It can't be his. And the number 7 is I am looking for my shoes. Answer is have you seen them? And the number 7b question is yes, they are here. Well guys, select a personal pronoun that agrees with the subject of each sentence. Options are it, I, they, we, she, he, him, you, them, his, etc. The answers are anyone can get his name. None of the checks were cashed. They finally expired. My mother and her sister took their vacation together. All are welcome dash just need
they just need. Number 5, Venus and Mars have their orbits. Number 6, the band starts its tour. Number 7, any of the candidates could win. Answer is they are. Number 8, everybody has dash on dreams. His own dreams. Answers are his, they, their, its, they, and the last number 8 is his. And the next question is डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. इसमें सिफ्त के जो दर्जात हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. फॉर एग्जांपल हार्ड सख्त, ये पॉजिटिव है. हार्डर ज़्यादा सख्त, ये कंपैरेटिव है. सुपरलेटिव है हार्डेस्ट. इसी तरह इंटरेस्टिंग है दिलचस्प, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम सॉल्व करेंगे. आई एम टेलिंग यू द आंसर्स. नंबर 1 बेस्ट, नंबर 2 faster and faster, number 3 more tight, and the number 4 is cheaper, and the last one number 5 is luckiest. जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दी है अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट आर्डर, यानी कि जो इसमें सिर्फ तो जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं इनको दुरुस्त तरतीब में हमने लिखना है. आई एम टेलिंग यू द आंसर्स. वी सा अ डैश ग्रे whale in the sea. Answer is huge. Number 2 blue. Number 3 a few. Number 4 rectangular, and number 5 is thin. जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है F portion. Put in will or be going to in the sentences. What is question? Put will or be going to. It means future indefinite tense. We have to follow this rule for future indefinite tense. I am telling you the answers. What is the question? Number 1, we don't have any bread. I know I dash get some from the shop. Answer is I will get. Number 2, we don't have any bread. Really? I dash get some from the shop. I will. इसी तरह नंबर 3 में I will होगा, नंबर 4 में I will होगा, नंबर 5 में I will होगा, नंबर 6 में I will होगा, और नंबर 7 में why are you carrying a hammer, and then नंबर 7 के B पोर्शन में होगा I am going to. जी तो स्टूडेंट्स हमने जो एक्सरसाइज थी ट्राई अगेन की यूनिट नंबर 3 की, ये हमने जो क्वेश्चन थे इसके ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस को हमने अच्छे तरीके से कर लिया. अब हम इसके साथ नेक्स्ट ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं. ऐसे नंबर 3 है कर्सी मीन खुश अखलाकी, गुड मैनर्स, जो आपका अच्छा बिहेवियर है. इसके स्टार्ट में हम कोटेशन पुट करेंगे. ही हु शोज़ कर्सी अरीव्स फ्रेंडशिप, जो खुश अखलाकी के बीज बोता है, जो खुश अखलाकी को परवान चढ़ाता है वो दोस्ती पाता है. एंड ही हु प्लांट्स काइंडनेस गैदर्स लव, और जो मेहरबानी के, रहमदिली के, खुश अखलाकी के पौधे लगाता है वो प्यार इकट्ठा करता है. द फर्स्ट पैसेज इज़ courtesy is the other name of excellence of social manners or polite behavior. In other words, courtesy means to practice good manners, refined habits and polite behavior. Courtesy in fact springs from good breeding, nobleness of mind and the gentle heart. The best among you is the person from whose hands and tongue others are safe. यानी हम कर्सी के जो पहला पैसेज है इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि कर्सी खुश अखलाकी कहते हैं किसको ना. ये वो समाजी आपके तल्लुकात होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, आपके गुड मैनर्स होते हैं, जो आपका नरम रवैया होता है, गुड बिहेवियर होता है, अच्छा रवैया होता है. दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अच्छे जो तौर तरीके होते हैं, बोल चाल बोलने का तरीका, जो तहजीब होती है, तौर तरीके होते हैं, इनको हम कर्सी या खुश अखलाकी का नाम देते हैं. और ये रहमदिली, शराफत, गुस्से पर काबू करना, अच्छे तरीके से अच्छे कामों में पहल करना, ये सारी चीज़ें कर्सी में आती हैं. इसी तरह हदीस मुबारक है कि तुम सब में से बेहतर वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें. तो इसके साथ कर्सी का जो नंबर पैसेज 2 है, courteous person believes that a man who digs pit for others himself falls into it, because it is well said, do good, have good. A courteous man is pleasant, polite to everybody. He observes good manners on all occasions and always respects the feelings of other. सेकंड पैसेज में हमने हदीस के अलावा इसमें मेंशन करना है कि जो खुश अखलाक पर्सन होता है, कर्टियस पर्सन होता है, वो इंसान होता है
जो अच्छाई के बदला अच्छाई में लेता है। जैसा कि हदीस मुबारक है ऊपर कि तुम में से बेहतर वही है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहने चाहिए। तो जो दूसरों के लिए बुराई का गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, जो अच्छाई करता है दूसरे के लिए उसके लिए भी अच्छाई होती है। इस तरह मेंशन है कि डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा होगा, आप किसी का भला करो आपका भी भला होगा। जो खुश अखलाक इंसान होता है, कर्टिस मैन होता है, वो हमेशा खुशगवार तरीके से, एहसन तरीके से दूसरों से पेश आता है और इसके जो हर मौके पर रहन सहन के तौर तरीके होते हैं, बोलचाल का तरीका होता है, वो दूसरों से बेहतर होता है। कर्सी कॉस्ट नथिंग बट इट काउंट्स अ लॉट। इस पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें इसके बदले में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ये हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न होती है हमें। नंबर 3 है आई रिफाइंड एंड कर्टिस मैन इज़ एन एलिजेंट and classy man. He is always humble and modest. All doors open to courtesy. All over the world, people greet each other by saying good morning or good evening. The Muslim greet one another by praying Assalamu alaikum. We can say that may Allah bless you with peace and protection. A Muslim greeting is a kind of wish, a prayer for mutual happiness, peace and security. Life is not so short but that there is always time for courtesy. It is quote for Emerson. जो एक अच्छा इंसान होता है, बाअखलाक इंसान होता है, जिसने अपने किरदार को बिल्ड किया होता है, किरदार को बनाया होता है, अच्छे किरदार रखने वाला इंसान होता है, वो हमेशा दरमियाना रास्ता अख्तियार करता है, वो हमेशा आजिज़ रहता है। जो तमाम खुश अखलाकी के, तमाम कामयाबी के जो रास्ते हैं वो खुश अखलाकी से खुलते हैं और दुनिया में जितने भी माने जाने वाले लोग हैं वो सारे खुश अखलाकी की वजह से अपने शख्सियत को संवारते हैं और तमाम लोग एक दूसरे को खुश अखलाकी के तौर पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जैसे अलकाबात का इस्तेमाल करते हैं। और जो मुसलमान हैं जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम से आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का, यानी अल्लाह पर आप पर रहमती करे, आप पर सलामती रखे। तो इस तरह से ये एक नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्ना होती है एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए, और जो एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होती है। तो लाइफ इज़ नॉट सो शॉर्ट, लाइफ ज़िंदगी इतनी मुख्तसर नहीं है, बट देयर इज़ ऑलवेज टाइम फॉर कर्सी, लेकिन कर्सी के लिए, खुश अखलाकी के लिए हमेशा वक्त होता है। ये एमरसन की कोटेशन है। ग्रेटिट्यूड इज़ द मोस्ट ट्रिमेंडस फॉर्म ऑफ कर्सी, गुड मैनर्स डिमांड इन अ क्राउडेड बस, वी शुड गिव अप आवर सीट फॉर सीक ऑल ब्लाइंड पर्सन आर अ वुमेन, वी मस्ट अवॉइड रूडनेस टू स्ट्रेंजर्स, प्लीज, सॉरी, वेलकम, राइट, etc. Words must be used according to the occasion. Courtesy takes nothing but gives us a lot. जो शुक्रगुजारी होती है वो आज इंसान को बनाती है, वो खुश अखलाक बनाती है। जो अच्छे मैनर्स होते हैं ये पुरहजूम लोगों जगह पर भी आपको बाअखलाक बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बीमार है तो हम किसी रश वाली जगह में बस में ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हम उसको जगह दे सकते हैं। किसी ब्लाइंड पर्सन की, ब्लाइंड शख्स की, ब्लाइंड औरत की, किसी वूमेन की, किसी खतून की हम इज़्ज़त कर सकते हैं, एहतराम कर सकते हैं, उसको सीट दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसको रोड क्रॉस कर सकते हैं। और जो अननोन पर्सन हमारे लिए, उनके साथ हम अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं, उनको गाइडलाइन दे सकते हैं। प्लीज़, सॉरी, वेलकम और राइट जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके हम आप खुद को खुश अखलाक बना सकते हैं और बहुत बड़े मौक़ों पर बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। और ये कर्सी ही है जिसमें हमें कुछ ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, लेकिन इसके बदले में हमें बहुत कुछ हासिल होता है। एंड द लास्ट पैसेज इज़, इससे पहले कोटेशन है, अ मैन विदाउट अ सेंस ऑफ कर्सी इज़ एन एनिमल विद द ह्यूमन फॉर्म। वो इंसान जिसमें खुश अखलाकी नहीं होती, कर्सी नहीं होती, बाअखलाक नहीं होता, जिसमें गुड मैनर्स नहीं होते, वो है तो इंसान है दिखने में, लेकिन वह जानवरों जैसा बिहेव करता है, उसकी जो फॉर्म है वो जानवरों जैसी है। कर्सी इज़ सच अ ग्रेट virtue which can turn the enemies into bosom friends, sorrow into joy and tears into happiness. Allah has again and again enjoined upon us to be humble and courteous towards others. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam imposed a great stress upon courtesy and kindness. He sallallahu alaihi wasallam himself led a life which was virtuous and polite. Hazrat Ali radhiyallahu anhu was a noble, kind-hearted and a righteous man. He radhiyallahu anhu was also a man of brave, humble and forgiveness spirit. Our great and beloved leader Qaid-e-Azam was the great paragon of courtesy. He treated people with politeness, so courtesy is very necessary. And the end of the essay there is a quotation, a man should not open a shop unless
है स्माइलिंग फेस। लास्ट पैसेज में बताया गया है कि जो कर्सी होती है खुश अखलाकी होती है, ये बहुत बड़ी नेकी है। ये बड़े बड़े दुश्मनों को बड़े बड़े अच्छे दोस्तों में तब्दील कर देती है, गमों को परेशानियों को खुशियों में बदल देती है। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस पर बहुत बड़ा अजर रखा है। जो इंसान आजिज़ी दिखाता है, खुश अखलाकी दिखाता है, अल्लाह ताला इसके बदले में इसको बहुत सारी नेमतों से नवाजते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम दिली पर, कर्सी पर, खुश अखलाकी पर बड़ा ज़ोर दिया है और उन्होंने ख़ुद ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ गुजार के दिखाई है जो हमारे लिए रोल मॉडल है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी इस बारे में गुजारी है, जो बड़े नरम दिल इंसान थे, खुश अखलाक इंसान थे और उन्होंने बड़ी हम्बल आजिज़ी से और दूसरों को माफ़ करने वाले जज्बात के साथ ज़िंदगी गुजारी है। और इस तरह से हमारे जो फाउंडर हैं, हमारे जो लीडर हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं, जिनके मरहून मिन्नत पाकिस्तान बना, वो कर्सी का पैरागॉन है, आला नमूना है, मॉडल हैं। उन्होंने भी हमें एक होने पर कर्सी पर जोर दिया है। इस तरह कर्सी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खुश अखलाकी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कह सकते हैं कि ए मैन शुड नॉट ओपन ए शॉप अनलेस ही हैज़ अ स्माइलिंग। उस इंसान को कोई भी उस वक्त तक कारोबार नहीं करना चाहिए, शॉप नहीं ओपन करनी चाहिए जब तक वो एक स्माइलिंग फेस नहीं रखता। ओके वेल गाइस, डू योर वर्क एट होम, स्टे ब्लेस्ड।